Dear students, today we are going to discuss refraction through a prism. प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है. फर्स्ट कम ओवर प्रिज्म. प्रिज्म होता क्या है? Then we used to say a prism is this very prism which we have to study is triangular prism. Question is this कि why triangular prism? Then because it is in the shape of triangle, its front means its top and bottom surfaces, both top and bottom surfaces are triangular in shape. That's why this very prism is known as triangular prism, right? When you will see a prism from its front, then it will appear in the shape of prism. It will appear in the shape of triangle. That's why this very prism is also known as triangular prism. Then we have to study here about refraction through a triangular prism, right? Then see here, your triangle in जो हम लोगों को यहाँ फेस दिख रहा है, दैट इज फ्रंट फेस इज विजिबल, और यू कैन से टॉप फेस इज विजिबल, विच इज ट्रायंगुलर इन शेप. एंड नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ABC, राइट. हेयर BC विल बी कंसिडर्ड एज बेस. यहाँ आप अगर सामने से देख रहे हैं तो BC आपको बॉटम में नजर आएगा. दैट्स वाई वी कंसिडर साइड BC एज बेस, राइट. And now we will have two faces AB and AC. यह दोनों पर जो है, इन दोनों फेस पर लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं. दैट्स वाई these two faces means AB and AC means this face and this face. These two faces are known as refracting faces. Why refracting faces? Because refraction at these two faces takes place, right? See here, and one more thing. See here, vertex A. At vertex A, one angle is forming here. This very angle is known as angle of the prism, right? This very angle is known as angle of the prism, and this very top point A or top vertex A is also known as refracting, that very point, these two sides AB and AC, you can say these two are refracting edges, right? Then now see here we have put a light PQ. Here we have put a light PQ. We have put a light PQ ऑन फेस AB फेस पर हमने जो है एक PQ लाइट इंसिडेंट कराया है, राइट. आउटसाइड द प्रिज्म, दिस वेरी प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास. देन आउटसाइड द प्रिज्म देयर विल बी एयर, और यू कैन से वैक्यूम. इट मीन दैट देयर इज डिफरेंस ऑफ मीडियम. Then when light will pass from vacuum to glass, when light will enter into the prism, it means that when light will pass from vacuum to glass, then there is change of medium. Here medium is changing, so there should be refraction. When light will pass from rarer medium to this denser medium, then light will bend towards normal. And when it will pass from denser to rarer, then light will bend away from normal, right? Then see first figure here. See this very figure. Here your incident light is PQ. आपका इंसिडेंट लाइट जो है PQ है. जरा इस फिगर से एक और दूसरा फिगर मैं लेकर के चल रहा हूं. सी दिस फिगर इज सेम, केवल उसमें अधिक लिखे हुए थे, मार्किंग अधिक था, इसमें मार्किंग कम है, राइट. हेयर यू हैव अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC. A is vertex, top vertex, where angle is forming, which is known as angle of the prism. Means here angle of the prism is equal to A. BC is your base. Now we have incident ray PQ. Now we have put a ray PQ over the prism, over the AB face of the prism.
then what will happen? Here light will pass from one medium to another medium. Means here light is going to enter from a rarer medium to denser medium. So light will bend towards normal. It means that here we have need of normal. Then see here, it is your normal. ये आपका नॉर्मल है. हमने ए बी फेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है एट पॉइंट क्यू, राइट. इट मीन दैट पी क्यू जो मेरा रे है क्यू पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है. मीन्स क्यू इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट. अगर यह प्रिज्म नहीं रहता तो लाइट ऐसे सीधे भागता चला जाता, बिकॉज लाइट प्रोपगेट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन path, but due to change in medium light will bend, path of light will bend. Here light is passing from rarer medium to denser medium, so it will bend towards normal. यह normal की तरफ मुड़ जाएगा, right. It means that then see here, यह जो है your refracted ray is this, right. It means that it is your angle of incidence I and it is your angle of refraction R, right. It means that at this very refraction, at first refraction, angle of incidence is I and angle of refraction is R. अब लाइट क्या होगा? लाइट जो है ग्लास में इंटर कर गया है, प्रिज्म में इंटर कर गया है. अब यह जो है ऐसे ही सीधे भागता चला जाएगा. बट व्हेन इट विल रीच पॉइंट आर, व्हेन इट विल रीच एट फेस ए सी, जब ए सी फेस के पास पहुँचेगा, जब यह लाइट आपका एसी फेस के पास पहुंचेगा, इट मीन दैट व्हेन इट विल रीच एट पॉइंट, व्हेन इट विल रीच एट पॉइंट आर, देन अगेन मीडियम ऑफ द लाइट विल चेंज. नाउ it is going to emerge from the prism, and here prism is denser medium and outside the prism medium is vacuum or air. It means that rarer medium, it means that again refraction will take place. And now at the position of second refraction, light is passing from denser medium to rarer medium, right. Then what will happen here? अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट आपका ऐसे भागता, लाइट आपका ऐसे भागता. बट हेयर मीडियम इज चेंजिंग, हेयर मीडियम इज चेंजिंग, सो path of the light will change. Here light is passing from denser medium to rarer medium, so it will bend away from normal. या away from normal. And see here, देखो यह away from normal हो गया, अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से और दूर भाग गया. It means that overall you can say here we have put a light PQ, here we have put a light PQ, here we have put a light PQ over face AB. रिफ्रैक्शन है टेकन प्लेस, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के ऐसे भागा है, एंड एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्शन लाइट जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया है और ऐसे भागा है. इट मीन दैट एट द पोजीशन ऑफ इन केस ऑफ प्रिज्म refraction takes place 2 times, right, and ultimately light emerges along this direction, right. For overall refraction we used to say, ऐसे तो कहा जाएगा 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एंड फॉर दीज 2 रिफ्रैक्शन इट इज योर इंसिडेंट रे, इट इज योर रिफ्रैक्टेड रे. सेकेंड रिफ्रैक्शन इट इज योर इंसिडेंट रे एंड इट इज योर रिफ्रैक्टेड रे, right. It is your angle of incidence, it is your angle of refraction, it is your angle of incidence, it is your angle of refraction. But for whole phenomena we used to say PQ is your incident ray, QR is your refracted ray, and this ray RS, this very RS emerges from the prism. That's why this very ray is known as emergent ray. And we used to say PQ for overall refraction, PQ is your incident ray, QR is your refracted ray, and RS is your emergent ray, right. This very angle is known as angle of incidence, which is your I. This very refraction is known as angle of refraction R. This very angle R dash is also known as angle of refraction R, and this very angle I dash is known as angle of emergence. Why angle of emergence? Why? Because this very angle is made by emergent ray with normal. Emergent ray normal के साथ बना रहा है. That's why this very angle is known as angle of emergence, which is also denoted by sign E. Here I dash दिखाया गया है
आप ई भी लिख सकते हैं एंड वी कैन से कि हेयर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एंड आर डैश एंड ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. राइट? सही. नाउ थिंक ओवर दिस वेरी प्रिज्म, थिंक ओवर इंसिडेंट रे. ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस. अगर यह प्रिज्म नहीं होता देन according to rectilinear propagation of light, light should follow this path, incident ray should follow this path. But what has happened here कि एक बार जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ है तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से इतना बेंड किया है, राइट, इतना बेंड किया है, और दूसरी बार में फिर जो है यहाँ जब इमर्ज करने लगा लाइट, प्रिज्म से बाहर निकलने लगा, तो लाइट को ऐसे भागना चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन फिर अपने पाथ से डेविएट किया है और इतना एंगल से डेविएट किया है. इट मीन दैट 2 times डेविएशन हैज टेकन प्लेस. राइट. फाइनली इमर्जेंट रे इज योर दिस. फाइनली जो आपका इमर्जेंट रे है, फाइनल जो इमर्जेंट रे है आपका जो है, फाइनल जो आपका इमर्जेंट रे है दैट इज दिस. आपका जो इमर्जेंट रे है वह ये है. राइट. एंड इंसिडेंट रे इज दिस. ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस. अगर इमर्जेंट रे को पीछे भगाएं देन वी कैन से डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे हैज टेकन प्लेस बाय दिस amount. Deviation of emergent ray has taken place by this amount, and this very angle del, by which incident ray has deviated from its original path is known as angle of deviation. Right? Angle of deviation, which is denoted by sign del, which is denoted by sign a small d you can say. इसको हम लोग पढ़ते हैं del. It means that you can say कि जब हमने प्रिज्म पर लाइट को इंसिडेंट कराया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, आर डैश है, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज आई डैश और ई, आई डैश और ई, एंड द एंगल बाय विच emergent ray has deviated from its path is del, is your del. Right? Then now question is this, what will be value of del? इस del का वैल्यू कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना. राइट. वी विल फाइंड हेयर this very angle of deviation. Right? First of all, come over quadrilateral AQNR. Quadrilateral AQNR पर आइए. Then we know that by angle sum property we used to say sum of all the 4 angles of a quadrilateral is equal to 180 degree. So we can say angle A plus angle Q plus angle N plus angle R will be equal to 360 degree. Right? But in this very quadrilateral, इस quadrilateral में, in this very quadrilateral, your this very line is normal. It means that this very angle will be 90 degree. Again this very line is normal, so this very angle will be again 90 degree. तब तो ये दोनों एंगल मिलकर के 90 डिग्री हो गया. Then sum of rest two angle should be again equal to 180 degree. राइट. क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया, तो जो बाकी बचे एंगल ए और एन, इन दोनों का एंगल का भी सम 180 होना चाहिए. देन एंड ओनली देन 180 प्लस 180 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. राइट. It means that we can say angle A plus N equal to 180 degree.
So we can write in quadrilateral AQNR, angle AQN equal to angle ARN equal to 90 degree. So by angle sum property, we can write sum of raised to angle a प्लस एन शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. जब दो एंगल जो है नॉर्मल के पास वाला एंगल दोनों 90 है तो 180 ये दोनों मिलकर हो गया, तो बाकी जो रेस्ट टू एंगल है इन दोनों का सम जो होगा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. राइट. नाउ कम ओवर ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्यू एन आर. सी इन ट्रायंगल क्यू एन आर. क्यू एन आर in this triangle QNR, we can write angle R plus R dash plus N equal to 180 degree. R plus R dash plus N will be equal to 180 degree, right? And once again see here, as this very angle is equal to I, as this angle is equal to I, then by vertical opposite angle, by property of vertical opposite angle, this very angle will be equal to this angle. And see here, these two are straight lines, so this very angle will be equal to this angle, right? It means that we can say angle I, we can say angle I will be equal to this angle, and angle I dash, which is also equal to E, will be equal to this angle by the help of vertically opposite angles. And then we can say, अगर पूरा इतना एंगल को I कह रहे हैं, पूरा इतना एंगल को if we are saying this whole angle is equal to I and this very angle is R, so we can write this very angle will be equal to I minus R. Likely in the same way, this very angle is I dash, which is also equal to E. It means that then this very angle will be E, and it is your R dash, so this very angle will be E minus R dash, right? So here we can write in triangle QNR, angle R plus angle R dash plus angle N equal to 180 degree. Then now see these two lines, these two equations, A plus N equal to 180 degree and R plus R dash plus N equal to 180 degree. We can write RHS of both are right. RHS of both are same 180 degree, so LHS will be also same. अब दोनों के LHS में NN है, so एंगल NN भी कैंसिल हो जाएगा. Then we will get angle R plus R dash will be equal to angle A. R plus R dash, angle R plus R dash will be equal to angle A. Consider this very equation as equation number 3, right? Now question is this कि what will be total deviation suffered by the emergent ray? कितना total deviation होगा? Then see here, it is your angle of deviation. ये आपका angle of deviation है. Then can we say for this triangle, this very angle will be angle of deviation. Then this very angle will be angle of deviation, or this very angle will be exterior angle. Then we can say del will be equal to sum of two opposite interior angles. It means that we can say del will be equal to this angle plus this angle, and this angle is equal to I minus R, and this very angle is equal to E minus R dash, or I dash minus R dash, or not. So del will be equal to this plus this, we can write. So total deviation suffered by the emergent ray is equal to del equal to I minus R dash plus E minus R dash. E is angle of deviation. दोनों क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू डेल एंड विच इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक होगा आई माइनस आर और दूसरा होगा ई माइनस आर डैश, राइट. तो इसको हम लोग और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश,
r plus r dash, and r plus r dash is equal to from this equation a, so we can write del will be equal to I plus e minus a, right? We can write this, and then we can write del will be equal to, angle of deviation will be equal to I plus e minus a. For a particular prism, एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए जिसका कि एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स्ड होगा, वी कैन राइट एंगल ऑफ डेविएशन विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्वेश्चन इज हाउ, सी वंस अगेन सी दिस इक्वेशन. अगर किसी खास प्रिज्म पर लेंगे, फॉर ए पर्टिकुलर प्रिज्म हुज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल, हुज एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी फिक्स्ड, मीन्स कि जिसका ए फिक्स्ड होगा, डेल किस पर डिपेंड करना चाहिए, आई पर और ई पर, आई पर और ई पर, राइट, आई पर डिपेंड करना चाहिए और ई पर डिपेंड करना चाहिए. नाउ व्हेन यू विल सी फिगर, when you will see figure, once again come over figure, here no need of figure. Now see here, E is depending on R dash, come over figure. E is depending over R. E will depend on R dash. R dash will depend on R, and R will depend on I. It means that we can say E will depend on I. Right? If you want to see, then come over figure. Value of E will depend on R dash. For this very refraction, R dash is angle of incidence. The angle of incidence कितना होगा, angle of emergence कितना होगा, that will depend on R dash. R dash कितना होगा, that will depend on R. R कितना होगा, that will depend on I. It means that we can say E will depend on I. It means that for a particular prism, angle of deviation will depend on angle of incidence. Right? We used to say angle of deviation depends on angle of incidence. Means angle of incidence बदलता जाएगा, angle of deviation बदलता जाएगा. Right? Angle of incidence बदलता जाएगा, angle of deviation बदलता जाएगा. Right? तो अगर हम लोग अलग अलग एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लें, और जो है then we will get value, different values of angle of deviation or not. और अगर I और डेल के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ बनाए, देन वी गेट अ ग्राफ, राइट, एंड दैट वेरी ग्राफ इज इन दिस शेप. सी हियर, नाउ आवर टॉपिक हैज बिकम ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन. हम लोग का टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, राइट. Along horizontal line we have shown angle of incidence, and along vertical line we have taken angle of deviation del. Right? सीधी सी बात है कि भाई अभी हमने कहा कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अलग अलग वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन का होगा. तो हम लोग एक टेबल बनाएं. हम लोग एक जो है यू कैन से कि एक टेबल बनाएंगे. जो है अगर टेबल बनाते हैं, आई लिखते हैं, यहाँ डेल लिखते हैं, अलग अलग वैल्यू लिखते चले जाएंगे, राइट. और फिर अगर आई और डेल के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएं, देन वी गेट ग्राफ ऑफ दिस टाइप. नाउ ऑब्जर्व दिस वेरी ग्राफ माइन्यूटली. इस ग्राफ को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए. तो जरा सा देखिए, तो लेट अस सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, राइट. लेट अस सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है. तो इतने एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है. इस एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पर ये है. इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन ये है ये नहीं. एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाए तो अब क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है. और बढ़ाए और घटा,
और बढ़ाए और घटा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जो है एकदम कम हो गया, राइट। उसके बाद और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मेरा बढ़ रहा है, और बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, और बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा है। इट मीन दैट वी कैन से with increase in value of angle of incidence, angle of deviation first increasing, angle of deviation first decreases and after that it increases. It means that for a particular value of angle of incidence, angle of deviation takes minimum value, right? One more thing observe here. Let us suppose टेक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ले लीजिए, राइट। इस एंगल ऑफ डेविएशन का ये भी पॉइंट है ग्राफ का और ये भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर सेम एंगल ऑफ डेविएशन है, बट दोनों पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मेरा डिफरेंट है। इट मीन दैट फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉट। कोई फिर दूसरा वैल्यू ले लो, मान लो ये वाला लेते हो, ये एंगल ऑफ डेविएशन लेते हैं, तो इस एंगल ऑफ डेविएशन पर जो है अगेन दो पॉइंट है, मीन्स दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या नहीं है। इट मीन दैट वी कैन से फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन इज दिस कि वह दो वैल्यू कौन कौन सा होगा, राइट। देन come over figure. See here, see in this very figure, for this very angle of incidence, angle of deviation is del. दूसरा कौन होगा जिस पर कि डेल ही डेविएशन होगा, कौन सा एंगल ले, इससे एंगल तो आप सेकेंड एंगल जो लेंगे कम और अधिक लेंगे, लेकिन नहीं, वह क्या होगा तो जरा सा देखो तो। लेट अस सपोज इस बार रे जो है राइट साइड से इंटर करा दीजिए, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस जो है आई डैश और यू कैन ई है, वह क्या हो जाएगा ऐसे होगा, फिर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो रे मुड़ जाएगा ऐसे, फिर इमर्ज कर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, फिर भाग जाएगा ऐसे। इट मीन दैट एंगल ऑफ इमरजेंस जो इमरजेंट रे है अपने एक्चुअल पाथ से कितना पीछे भागा है, तो इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इमरजेंट रे को पीछे ले जाओ, इतना एंगल से डेविएट किया है नहीं किया है। देन नाउ यू टेल मी, जरा ध्यान से देखो तो फिगर को, जरा फिगर को ध्यान से देखो तो, सी फिगर माइन्यूटली, अगर इस रे को आगे बढ़ाएं तो दीज टू एंगल्स विल बी सेम और नॉट। इट मीन दैट यह जो डेविएशन दोनों सेम होगा, इसका मतलब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन डेल है, और जो एंगल ऑफ उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इमरजेंस है उसके लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल ही है, उतना ही है या नहीं है। इट मीन दैट जो हम लोगों को दो वैल्यू सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, वो क्या है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस है और नॉट, राइट। इसका मतलब अगर हम लोग अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल देंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस बदल जाएगा, और फिर इस एंगल ऑफ इमरजेंस को एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देंगे तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इमरजेंस बन जाएगा, एंड एंगल ऑफ डेविएशन विल बी सेम, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन विल बी सेम। It means that we can say for same value of angle of deviation we get two values of angle of incidence, right। वही ग्राफ में दिख भी रहा है, अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन लेते हैं, अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन लेते हैं तो इसका ग्राफ पर इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट एक ये है, एक ये है, इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। इसका मतलब एक जो है आई है तो एक जो कह सकते हो यू कैन से ई है, राइट, सही। फिर दूसरा वैल्यू लो ग्राफ पर, दूसरा वैल्यू लो ग्राफ पर, ये और ये हो जाएगा, और वैल्यू लो तो ये और ये हो जाएगा, बट कम ओवर लोवेस्ट डेविएशन, जो लोवेस्ट डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है, इस पर क्या होगा, यह दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दोनों सेम हो जाएगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस और नॉट।
सी माइन्यूटली। इस ग्राफ को फिर से देखिए जरा सा। हमने क्या कहा था, इस ग्राफ को देखने से स्टडी करता है कि क्या हम लोग पाते हैं कि विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेज, एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेज at a particular point it takes minimum value, then after it starts increasing, yes, increase करना शुरू कर देता है, right? It means that this is the point of minimum deviation. At this very point deviation suffered by the ray is minimum, right? It means that at this very point angle of deviation will be minimum, and this very angle of deviation, minimum deviation, is denoted by sign del m. It means that we can say at del m angle of incidence will be same as angle of emergence, right? We can say at the minimum deviation angle of emergence will be same as angle of incidence will be same as angle of emergence, means I will be equal to I dash, or you can say I will be equal to E, right? Graph between angle of incidence and angle of deviation shows that for two values of angle of incidence we have same values of angle of deviation. जो है दो एंगल ऑफ डेविएशन पर दो सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या कह दीजिए दो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एक्सेप्ट वन पॉइंट, एक्सेप्ट मिनिमम एट मिनिमम डेविएशन एट विच आई इज इक्वल टू ई. It means that we can say at this very position deviation suffered by the light is minimum, which is denoted by sign del m, which is denoted by sign del m, right? It means that we can say at minimum deviation I is equal to E, right? At minimum deviation I is equal to E, और जब I इक्वल टू E होगा तो जरा सा ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस I के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R था, एंगल ऑफ इंसिडेंस E के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R डैश था, तो जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, और नॉट? भाई सेम मटेरियल है तो अगर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा ही नहीं होगा, तो दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो गया जब लेफ्ट साइड से रे लेकर चल रहे थे तब, और जब राइट साइड से रे लेकर के चल रहे थे तब, दोनों जब सेम हो गया तो दोनों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम हो जाएगा, और नॉट? वी यूज टू से कि एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of emergence and R will be equal to R dash, right? And when R dash will be equal to R dash, then what will be condition of refracted ray? जो प्रिज्म के अंदर लाइट का रे है उसका क्या होगा? We used to say refracted ray inside the prism will be parallel to its base, base के parallel हो जाएगा. Question is how? या कैसे कहेंगे? देन टू नो दिस वंस अगेन कम ओवर फिगर. See this very figure. You are saying I equal to E. I equal to आपने E कह दिया, then R will be equal to R dash. ये हो जाएगा. नाउ कम ओवर दिस वेरी क्वाड्रिलेटरल, नाउ कम ओवर दिस वेरी क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल पर आ जाइए, राइट? व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या पढ़ देंगे हम लोग, ज्योमेट्री में पढ़े हैं, सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? वी हैव टेकन दिस वेरी ट्रायंगल एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, or consider these two sides are equal, then these two angles will be also equal. Then by property can we say these two angles will be also equal? यह दोनों एंगल भी इक्वल होगा, और यह दोनों एंगल इक्वल है. व्हाट डज इट मीन? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, दिस line is parallel to this. That's why we used to say at minimum deviation I will be equal to E, R will be equal to R dash, and refracted ray will be
parallel to base. Refracted ray will be parallel to base, right? Then now what will happen? इसके बाद क्या होगा? It means that at the position of minimum deviation, I will be equal to E. At the position of minimum deviation, I will be equal to E. Yes, at the position of minimum deviation, I will be equal to E, R will be equal to R dash, and refracted ray will become parallel to the base, right? Then now हमने एक रूल लिखा था R plus R dash equal to A, and R dash at minimum deviation both has become equal, so R plus R dash equal to A means R plus R equal to A. हमने एक इक्वेशन देखा था R plus R dash equal to A, and this both has become equal, then we can say 2R will be equal to 2R will be equal to A. It means that R will be equal to A by 2. R will be equal to A by 2, right? और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A. एट द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I प्लस E इक्वल टू डेल इक्वल टू पढ़े थे डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A, और अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो I और E दोनों बराबर हो जाएगा, देन इट विल बिकम 2I माइनस A, राइट? वी कैन राइट डेल एम विल बी इक्वल टू 2I माइनस A. यहाँ से अगर आप I निकाल लें देन वी कैन राइट A उधर लेकर चले जाएंगे, हो जाएगा डेल एम प्लस ए प्लस डेल एम बाई 2, एंड वी कैन राइट I विल बी इक्वल टू A प्लस डेल एम बाई 2. जरा ध्यान से देखना बाबू, हमने जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फाइंड आउट कर लिया. देन वी कैन यूज स्नेल्स लॉ. हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R, right? It means that we can find refractive index of the prism, and we can write refractive index of the prism mu of 2 with respect to 1. मान लो मीडियम नंबर 2 हमने प्रिज्म को माना, ग्लास को माना, और मीडियम नंबर 1 आउटसाइड द प्रिज्म एयर को माना, देन वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू साइन I बाई साइन R. हेयर I इज इक्वल टू, हेयर योर I इज इक्वल टू दिस मच and R is equal to this much, so we can write sin A plus del m by 2 by sin A by 2, right? We can write sin A plus del m by 2 by sin A by 2, right? अब इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, हम लोग को जो है A is the angle of the prism which will be given, और by थ्रू एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड, यह जो प्रिज्म वाला जो है मिनिमम डेविएशन का निकालने का और म्यू निकालने का हम लोगों को प्रैक्टिकल भी करना है, तो वहाँ पर मैं एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालना भी सिखाऊंगा, या नहीं तो एंगल ऑफ द प्रिज्म विल बी गिवन, राइट? और डेल एम जो है हम लोग अलग अलग आई के लिए, अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग आई का वैल्यू लेंगे तो अलग अलग डेल का वैल्यू आएगा, और उससे ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम लोग डेल एम का वैल्यू, मिनिमम डेविएशन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन दैट ए एंड डेल एम कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, राइट? और जब एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे तो हमको ए पता चल जाएगा, हमको डेल एम पता चल जाएगा, ए पता ही है. इट मीन दैट वी कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन बी मेजर्ड, राइट? And by the help of this we find refractive index of the prism, right? इस एक्टिविटी से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म को पता कर सकते हैं, राइट? इसका हम लोगों को प्रैक्टिकल भी करना है, यही ग्राफ बनाना था, मिनिमम डेविएशन का बनाना रहेगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना रहेगा. कैसे करेंगे? हम लोग जो है प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग वैल्यू आई का वैल्यू लेंगे, अलग अलग डेल का वैल्यू आएगा, उससे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम लोग जो है फिर जो है
डेल एम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और डेल एम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग म्यू भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी फाइंड आउट कर जाएंगे, राइट। नाउ कम ओवर द फैक्ट दैट कि व्हाट विल हैपन व्हेन प्रिज्म विल बी थीन, जब मेरा प्रिज्म बहुत ही पतला रहेगा, व्हेन प्रिज्म विल बी थीन लाइक दिस, इस तरीके से रहेगा, इट मीन दैट एंगल ऑफ द प्रिज्म विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ द प्रिज्म विल बी वेरी वेरी स्मॉल। और जब एंगल ऑफ द प्रिज्म बहुत ज़्यादा रहेगा उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन भी जो होता है दैट विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, राइट। एंड वी यूज टू राइट for a thin prism, angle of the prism as well as minimum deviation will be very very small, and in that very case जब small होगा इसका मतलब sin थीटा जो है that is small, मीन्स sin a प्लस डेल एम जो हो गया, a प्लस डेल एम मेरा स्मॉल हो गया, तो जब ये स्मॉल हो गया तो ये पूरा एंगल स्मॉल हो जाएगा, तो थीटा टेंड टू जीरो, सो साइन थीटा विल बी आल्सो टेंड टू थीटा। ए मेरा यहाँ पर साइन ए बाई टू में जो है ए मेरा स्मॉल है, मीन्स ए देन ए बाई टू विल आल्सो टेंड टू जीरो, सो साइन थीटा विल टेंड टू ए बाई थीटा, एंड इन दैट वेरी केस वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। इसको लिख देंगे एज ए प्लस ए इज टेंडिंग टू जीरो, del m is tending to 0, so a plus del m will tend to 0, so a plus del m by 2 will also tend to 0, then sin a plus del, as sin a plus del m by 2 is tending to 0, so a plus del m, so sin theta will tend to theta, and this very expression will become mu will be equal to a plus del m by 2 by a by 2, a प्लस डेल एम बाई 2 बाय ए बाय 2, राइट। और जब इतना हो जाएगा देन वी कैन राइट डेल एम, सॉरी यहाँ पर जो है डेल का साइन बन गया जो है इसे, डेल एम विल बी इक्वल टू योर एक्सप्रेशन विल बिकम, क्या मेरा बन जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बिकम म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाय ए, राइट। अलग अलग ब्रेक करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू, अलग अलग कर दो, ए बाई ए 1 प्लस डेल एम बाय 2, 1 को उधर लेकर जाओ, देन म्यू माइनस 1 विल बी इक्वल टू डेल एम बाय ए, देन डेल एम विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, और नॉट, it will become del m equal to mu minus 1 by a. Now see here, it means that what we are getting, del m is equal to mu minus 1 into a. What does it mean? As for thin prism, angle of prism is also small, angle of the prism is also small, mu is refractive index of the medium, तो यह मान के चलिए वैल्यू छोटा होगा ही होगा, और जब ये छोटा हो जाएगा then this whole value will be also small, it means that minimum deviation will be also small, it means that for thin prism angle of deviation, angle of prism will be very very small, so minimum deviation will be also small, it means that you can say thin prism does not deviate light by large amount, and we can say thin prism do not deviate light much. एक थिन प्रिज्म जो है लाइट को बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कराता है, राइट। ओके, थैंक यू।